So very pleasant morning to all my lovely students. In last lecture we have discussed about the civilization and cities. What is the meaning of civilizations and which civilization we are going to study? We are studying about the Harappa civilization, which is also known as Indus Valley civilization. So before starting this chapter, I want to show you some images related to this chapter. So first you will see all the images. These images are in your book also. So let's start with the images, then we will start the topic features of this civilization. So students, have you seen the images? It's wonderful civilization which we are going to study. So to keep the chapter interesting, you have to take the interest what we are going to study. So first I am telling about the features of this civilization. In last class we have discussed who discovered the civilizations. Who discovered? Dayaram Sahani 1920. Remember previous point also. So today our topic is features of this civilization. So first features of this civilization is it is the well developed city. Well developed means it is very advanced, the technique, whatever remainings we have got from this civilization, it proves that this civilization is very well developed civilization. Next point, buildings were made of stones and burnt bricks. Yesterday I also told you the whatever structures, skeletons, remainings we have found, it proves that the all buildings were made of stone. Stone मतलब बहुत मजबूत थी buildings and backed brick. Burnt brick यानी कि पक्की ईंटों से बने हुए थे सारे घर जितने भी थे. Next is spectacular city planning and efficiency. Spectacular यानी कि around 4,500 years ago. This development happened. It is very amazing for us कि इतने साल पहले इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका था, हम जिसे इमेजिन भी नहीं कर सकते. एक बिल्कुल प्रॉपर सिटी प्लान की गई थी, ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा था, रोड्स का कनेक्शंस, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे ले रहे हैं टाउन प्लानिंग. It is a topic, all topics are according to your book. Fine. So first topic is town planning. How was the Harappa cities planned? So mostly according to the town planning, the town was divided mostly in two parts. First was upper part and second was lower part. Remember these? Town planning, towns mostly according to the structure, जिस तरह से वो बनाए गए थे, according to the structure they are divided into two parts, upper town and lower town. Now upper town is also known as citadel. जो upper town थे यानी कि जो घर या जो भी ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स थी जो ऊंचाई पर बनी हुई थी, उसे हम क्या कहेंगे? citadel. ये स्मॉलर थे और हायर यानी कि बहुत ऊंचाई पर बने हुए थे और कम थे. नेक्स्ट इज लोअर पार्ट, लोअर टाउन. दे वर बिगर एंड लोअर यानी कि नीचे बने हुए थे, यानी थोड़ी नीची सतह पर बने हुए थे और बहुत सारे थे. ग्रिड पैटर्न पे बने हुए थे ऑल हाउसेस, जितनी भी हाउस पैटर्न थे अकॉर्डिंग टू द सिस्टमेटिकली मैनर, वेल प्लान ग्रिड पैटर्न से बने हुए थे. स्ट्रेट्स रोड्स थी यानी कि जितनी भी रोड्स बनी हुई थी वो स्ट्रेट थी, हर गली में रोड थी, छोटी रोड बड़ी रोड से कनेक्ट हो रही थी. एंड प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम, इसको हम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम में. अगेन आई एम रिपीटिंग, features of civilizations,
इट इज़ वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर, बहुत वेल डेवलप्ड सिटी थी। बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड बर्न ब्रिक्स, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो किससे बनी हुई थी? बैक्ड ब्रिक से। स्पेक्टेकुलर सिटी प्लानिंग एंड एफिशिएंसी, जो भी स्ट्रक्चर्स हमें अंडर द अर्थ मिला है या जो खुदाई से मिला, उसको देखने के बाद एक चीज़ तो पता चलती है कि जो भी चीज़ें बनाई गई वो प्रॉपर प्लानिंग से और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ बनाई गई, जो इतने सालों बाद भी एज इट इज़ हमें मिली है। डिस्ट्रॉय ज़रूर हुई है सिविलाइजेशन, लेकिन उसके रिमेन ये प्रूव करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही एक स्पेक्टेकुलर, बहुत एफिशिएंसी और बहुत वेल प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस द टाउन प्लानिंग। टाउन्स अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर्स बोल लीजिए या फिर बनावट के अकॉर्डिंग बोल दीजिए, तो दो ही तरह की हमने इसे डिवाइड किया, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अब इसमें ऐसा भी माना जाता है कि वैसे आपकी बुक में नहीं है, लोअर टाउन में मोस्टली कॉमन पीपल रहा करते थे, यानी कि सोशल डिवीज़न भी था। ऐसा माना जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे रॉयल फैमिली, चाहे राजा या जो लीडर किंग जो भी उस वक्त हुआ करते थे, वी आर नॉट श्योर अबाउट देम, जो दे आर लिविंग द सेटाडल, वो ऊंचाई पर रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स थी, और लोअर पार्ट जो था वो कॉमन पीपल्स के लिए था जो वहाँ पर रहा करते थे। तो अपर पार्ट सेटाडल छोटा था और हायर मतलब थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। लोअर टाउन बड़े थे, बहुत सारे नीचे पे बने हुए थे, ग्रिड पैटर्न से सारे हाउसेस बने हुए थे। ग्रिड यानी कि एक एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग, जिस तरह से अगर हम हमारी सोसाइटी देखते हैं तो आज जितनी भी सोसाइटीज़ बनती हैं तो वो बहुत वेल प्लान्ड होती हैं, उसी तरह से। स्ट्रेट्स रोड्स थी, प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम था। अब स्ट्रेट्स रोड्स, प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम, आगे बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं इसमें। ये प्रूव करता है कि लोग बहुत अवेयर थे अपनी हेल्थ को लेकर, अपने जो उनका जो रहन सहन था या जो उनकी लाइवलीहुड थी वो बहुत ही एडवांस थी। सो दिस इज़ अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा civilization. So students, after the explaining the features, in features we have discussed about the town planning, and now next topic of your book is spatial buildings. In starting I have shown some images to you. Have you seen? So we are talking about that buildings which that remaining of the buildings which we found from the civilization. So first building is granary. Granary means in Mohenjo-daro the largest building was a granary. It worked as a storage, surplus storage की ऐसा माना जाता है कि जो surplus होती थी, grains होती थी, उसे store करने में granary का use किया जाता था। और 6 granaries मिली है वहाँ से, कहाँ से? इस सिविलाइजेशन से। सो ग्रेनरीज फर्स्ट बिल्डिंग है। नेक्स्ट बिल्डिंग वाज द ग्रेट बाथ, इसकी भी पिक्चर्स मैंने आपको शो किए। ग्रेट बाथ, many archaeologists or historians say that it is the religious place where people come for taking the bath in a particular time. ऐसा माना जाता है कि लोग आते थे रिलीजियस पर्पस से यहाँ पर बाथ लेने, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्मूथ है, एक तरफ से वाटर के आने का, दूसरी तरफ से ड्रेनेज का बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। और इस ग्रेट बाथ के आसपास कई सारे रूम मिले हैं, मे बी दे आर चेंजिंग रूम। इसके बाद थर्ड बिल्डिंग है आपकी इसमें टाउन हॉल, एक टाउन हॉल मिला है। इट इज़ वेरी इमेजिनेशंस दैट इस टाउन हॉल का यूज़ लोग करते थे डिस्कशंस के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो, चाहे वो सोशल डिस्कशन हो, और किसी भी डिस्कशन करने के बाद वो कोई रिजल्ट लेते थे, यानी यहाँ पे लोग असेंबल होते थे किसी पर्टिकुलर डिसीजंस के लिए। और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है, आपको याद रखनी है। पहली थी ग्रेनरी, दूसरी है ग्रेट बाथ, और थर्ड इज टाउन हॉल। Now the spatial buildings, as earlier we have learned that the town planning was upper town and lower town. So spatial buildings are found in the upper town. These are the part of upper town.
नाउ व्हाट अबाउट द लोअर टाउन? सो लोअर टाउन में कई सारे ग्रिड पैटर्न्स, सिस्टमेटिकली रोड्स and drainage patterns, so we are talking about that. So 1 and 2 stories houses mostly found in the lower town. ज़्यादातर एक मंजिल या फिर 2 मंजिल के घर मिले हैं. built of baked bricks, सारे ही घर baked bricks से बने हुए यानी कि पक्की ईंटों से. individual houses, हर एक individual houses में 2 या 3 कमरे हो सकते थे, एक या एक से ज़्यादा रूम थे. प्लेस फॉर द कुकिंग, हर एक हाउस में कुकिंग का और बाथिंग का प्लेस दे रखा था, यानी कि प्लानिंग थी पूरी कि घर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूम्स जरूरी है. हाउस हैड द ड्रेनेज पाइप, हर हाउस में एक ड्रेनेज पाइप मिला है, जिससे हमारे घरों में होता है ड्रेनेज, हर जगह पर नालियाँ बनी होती है जो बाहर एक मेन ड्रेनेज के साथ कनेक्ट हो जाती है. सेम उसी तरह से हाउसेज हैड ड्रेन पाइप्स विच वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन, जो बाहर जाके किसी मेन ड्रेन से कनेक्ट हो जाती है. इतना सिस्टमेटिकली मैनर में जो लोअर टाउन्स के जो हाउसेस थे वो बने हुए थे. नाउ अबाउट द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स बनी हुई थी, हर स्ट्रीट के एक तरफ ड्रेनेज सिस्टम था. स्ट्रीट जो थी रोड्स बनी हुई थी, रोड्स के साथ देयर द पेवमेंट वे, एक पक्का रास्ता जिसे हम फुटपाथ कहते हैं वो भी बना हुआ था, जिससे लोग को चलने में आसानी रही. यानी कि जो भी चीज़ें डेवलप थी वो इस सिविलाइजेशन में हमें पाई गई. सो इट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिविलाइजेशन विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.